నమః శివాయ. మహాశివుడు బోళాశంకరుడు రాక్షసుల సైతం శంభో శంకర అన్నవారికి వరములిచ్చేటి కైలాసవాసుడు. ఓం నమః శివాయ. పామరుడు సైతం అనగలిగిన ఈ నమః శివాయ మంత్రం ఒక్కటే శివునికి ప్రీతికరం. అటువంటి ఆదిదేవుడు గరళకంఠుడిని స్తుతిస్తూ హరహర శంకర మహాదేవ, శివ శివ శంకర సదాశివ అంటూ శివాయ గౌరీవదనారవిందాయ సూర్యాయ దక్షధ్వరనాశకాయ శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ. శంకర మహదేవా, హర శంకర మహదేవా, చంద్రకళాధర గంగాధర, చంద్రకళాధర గంగాధర, శివ శివ శంకర సదాశివ, శివ శివ శంకర సదాశివ, కాషాయాంబర దిగంబర, కాషాయాంబర దిగంబర, నటన మనోహర నటరాజ, నటన మనోహర నటరాజ, ఢమ ఢమ ఢమరుక నాట్య శివ, ఢమ ఢమ ఢమరుక నాట్య శివ, హర హర శంకర మహదేవా, శంకర మహదేవా, చంద్రకళాధర గంగాధర, చంద్రకళాధర గంగాధర, శివ శివ శంకర సదాశివ, శివ శివ శంకర సదాశివ, కాషాయాంబర దిగంబర, కాషాయాంబర దిగంబర. శ్రీశైలవాస మల్లికార్జున, శ్రీశైలవాస మల్లికార్జున, శ్రుతజన పూజా సదాశివ, శ్రుతజన పూజా సదాశివ, అమరావతిపుర అమరేశ్వర, అమరావతిపుర అమరేశ్వర, ఆశ్రిత మందార మహదేవ, ఆశ్రిత మందార మహదేవ, హర 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 ఓం నమః శివాయ, హర హర ఓం నమః శివాయ, శివ 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 ఓం సదాశివాయ, శివ 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 ఓం సదాశివాయ, హర హర శంకర మహదేవా, శంకర మహదేవా, చంద్రకళాధర గంగాధర, చంద్రకళాధర గంగాధర, శివ శివ శంకర సదాశివ, శివ శివ శంకర సదాశివ, కాషాయాంబర దిగంబర, కాషాయాంబర దిగంబర. నిలయ విశ్వేశ్వర, హరిచర్మాంబర సర్వేశ్వర, హరిచర్మాంబర సర్వేశ్వర, కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర, కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర, కోటి వేల్పుల కోటప్ప దేవర, కోటి వేల్పుల కోటప్ప దేవర, హర 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 ఓం నమః శివాయ, హర హర ఓం నమః శివాయ, శివ 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 ఓం సదాశివాయ, శివ 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 ఓం సదాశివాయ, హర హర శంకర మహదేవా, శంకర మహదేవ, చంద్రకళాధర గంగాధర,
శివ శివ శంకర సదాశివ శివ శివ శంకర సదాశివ ఆశాయాంబర దిగంబర ఆశాయాంబర దిగంబర శ్రీకాళహస్తి లింగేశ్వర శ్రీలింగేశ్వర సకల శుభంకర నందీశ్వర శుభంకర నందీశ్వర చేజర్లపురమున కపోతేశ్వర జల్లపురమున కపోతేశ్వర గంగ జఠాధర గౌరీశ్వర జటాధర గౌరీశ్వర హర 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 ఓం నమ శివాయ హర హర ఓం నమః శివాయ శివ 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 ఓం సదాశివాయ శివ 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 ఓం సదాశివాయ హర హర శంకర మహదేవా హర హర శంకర మహదేవ చంద్రకళాధర గంగాధర చంద్రకళాధర గంగాధర శివ శివ శంకర సదాశివ శివ శివ శంకర సదాశివ ఆశాయాంబర దిగంబర ఆశాయాంబర దిగంబర నటన మనోహర నటరాజ నటన మనోహర నటరాజ ఢమ ఢమ ఢమరుగ నాట్య శివ డమడమరుక నాట్య శివ హర హర శంకర మహదేవా హర హర శంకర మహదేవ చంద్రకళాధర గంగాధర చంద్రకళాధర గంగాధర శివ శివ శంకర సదాశివ శివ శివ శంకర సదాశివ ఆశాయాంబర దిగంబర ఆశాయాంబర దిగంబర హర హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమ శివాయ శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమః శివాయ హర హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమ శివాయ శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమః శివాయ హర హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమ శివాయ హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమః శివాయ హర హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమ శివాయ హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమః శివాయ హర హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమ శివాయ హర శంకర శివ శివ శంకర శంభో శంకర నమః శివాయ శంభో నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है। सत्संग है एक अमृत सागर।
सत्संग है एक अमृत सागर, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर, मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना है, मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, जीवन तो बनाना है सत्संग एक ठिकाना है, जीवन तो बनाना है सत्संग एक ठिकाना है, यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है, यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ఓం గురుభ్యో నమః. లోకనాథ్ బాబా గారి సహకారంతో చార్ధామ్ యాత్రకు వెళ్ళాను సకుటుంబంగా. వెళ్ళిన టైంలో మనం గంగోత్రి దర్శనం జరిగింది. గంగోత్రి దర్శనం దగ్గర ఉదయం ఈశావాస్య ఆశ్రమంలో ఒక భండారం కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టాము. అది సాధువులు భిక్ష పెట్టడం, భోజనం పెట్టడం. అదైన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా మేము కడీ భిక్ష అని చెప్పి వచ్చిన సాధువులకి కొంచెం భోజనము, తర్వాత కొద్దిగా దక్షిణ కూడా ఇద్దామని చెప్పి వెళ్ళి నిలబడ్డాము. నిలబడినప్పుడు అందరిలోనే ఒక స్వామీజీ ప్రత్యేకంగా హరి ఓం ఆనంద్ అని చెప్పి, ఆయన ఉత్తరాఖండ్లో ఉండే ఆయన కనిపించి, మాకు తెలియదు, ఆయన లోకనాథ్ బాబా గారిని చూసి, అయ్యా లోకనాథ్ బాబా గారు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎలా మిమ్మల్ని చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా సంతోషం అండి, మీరు మా కుటీరంగా రండి అన్నారు.
అంటే అప్పుడు సాయంత్రం 5 ఆ ప్రాంతంలో సాయంత్రం కాబట్టి భిక్ష ఇచ్చిన తర్వాత ఓ 20 నిమిషాల తర్వాత మేము ఆయన కుట్టేయడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు ఈయనేమో బాగా చదువుకున్న విద్వాంసుడు, ఈయన సంస్కృతంలోని ఉపనిషత్తుల్లోని వాటిలోని బాగా ప్రవేశం ఉన్నట్టుంది. తర్వాత అస్ట్రాలజీ కూడా చెప్తారు ఆయన. ఆయన దగ్గర 1 గంట వరకు మనం సత్సంగం పెట్టుకున్నాం. ఇందులో ఏంటంటే ఆయనతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఎలాగా సాధు జీవితంలో వచ్చారు, తర్వాత ఎక్కడెక్కడికి తిరిగారు, ఆయనకేమో తర్వాత కొంచెం తమిళ వచ్చింది, కొంచెం తెలుగు వచ్చింది, అదే హిందీ ఆయన. కానీ ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఇంకా మరి ఈ 4 అవస్థలు మనిషికి, మన జాగ్రత్త అవస్థ, తర్వాత ఏమో స్వప్నావస్థ, తర్వాత సుషుప్తి అవస్థ, ఆ తర్వాత తురీయం, వీటి గురించి కొంచెం చెప్పమంటే బాగా సమాధానం ఇచ్చారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చేసి ఒకటి పరిస్థితి అంటే సూపర్ కాన్షియస్నెస్కి వెళ్ళిపోవడానికి, ఆ పరిస్థితి రావడానికి అంతవరకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ సుషుప్తి దాటిన తర్వాత తురీయం వస్తుంది, అక్కడ కమ్యూనియన్ అవుతుంది, అంటే శూన్యంలోకి చేరడం అన్నమాట. ఆ పరిస్థితి రావడానికి విధానం కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు హిందీలోని. అది మనం వినొచ్చు, ఆయన మాటల్లోనే విందాము. आपके दर पे जो आ गया, आपके दर पे जो आ गया, आपके दर पे जो आ गया, आपके दर पे जो हरिओम आनंद। हरिओम आनंद आते हैं, पहले आए गायत्री माता जी के हर साल। और हर साल आते हैं। हाँ, कितने साल से ये? मेरे को 18 साल हो गए यहाँ। 18 साल हो गए यहाँ पर। इसके पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं उत्तरकाशी था, फिर उससे पहले कहीं दूसरी जगह था, ऐसे ही चल रही है गाड़ी। तो कल हम केदारनाथ। हाँ कल किधर? हाँ। ओह, उत्तरकाशी। अच्छा कल आए ना आप लोग? हाँ, कल लेट होगा, लेट बंद होगा। हाँ रास्ता रास्ता बंद बंद होगा, नहीं तो बारिश हो रही है 4 दिन सुबह से। रहता था, हाँ 4 या 5 घंटे रुके हैं। हाँ 4-5 दिन से बारिश हो रही है यहाँ, तो आज ही खुला है, अभी खुला रहेगा मौसम के लिए। हाँ, धूप आ गया ना। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ पर रहने का और दिल करता है। तो रहो रहना ही चाहता हूँ, और but क्या? अभी झंझट से बाहर निकलना है, कैसे करते हैं आप बताइए। स्वामी जी को बताएंगे मुझे। बोले ठीक है, मैं छोड़ जाता हूँ, आप रहिए यहाँ पे। अरे ये बाबा जी ये आपका ये रामानंद जी हैं, अभी तो शरीर 83 में इनका चला गया था, अब दूध रहे उन्हीं की कुटिया है जी। मैं तो बहुत बाद में आया। हाँ। स्वामी जी यहाँ रहे, इनका नाम है स्वामी रामानंद गिरी। तो अब दूध रहे बिना कपड़ों के ही जी। पहले शुरू में बहुत साल यहीं रहे, 12 महीने शीतकाल में रहते थे, और गंगा जी में खड़े होके तप करते थे जी, कि इतना गंगा जी खड़े होकर तप करते। बाद में फिर क्योंकि शरीर है ना पंचभौतिक शरीर, तो वो ठंडी की वजह से इनकी नसों में प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, वीकनेस आ गया बहुत ज़्यादा। तो बाद में अंतिम अवस्था में थोड़ा सा घुटनों के बल आ गया। हाँ क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध ने बोला है अति नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाँ कोई भी किसी चीज़ की अति नहीं हो, मध्यम मार्ग हो, बीच वाला, बस उतना ही काफी है। बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ तो ठंडी में फिर ठंडे पानी में माइनस में पानी में खड़े होके, तो है तो ये पंचभौतिक शरीर ही है ना, तो ये पूरे का पूरा डेड हो गया था। तो स्वामी जी यहीं रहे, फिर 83 में इनका सिर शांत हुआ। उत्तरकाशी में का आश्रम है गंगा जी किनारे पे, उन्हीं के इसी में ये रहते थे। ये हॉल नहीं था, ऊंचा है ये थोड़ा, ये जगह ऊंची है, और वो जो तीनों बैठे हैं आप, तो पूरी दीवार थी इतनी। हाँ और बाद में फिर इसको बढ़ाया गया, तो इतना ही था। तो गुरु जी इसी में रहते थे, कोई कपड़ा नहीं, माने भोज पत्र नीचे घुसाते थे, और जी उनका स्टोर था, मैंने अपना रूम बना लिया। तो ये धुना चलता रहता था उनका, धुना ना, क्योंकि वस्त्र नहीं पहनते थे, धुना चलता रहता था उनका, तो यही रहते थे। फिर बाद में जब ये स्थिति आई तो फिर 6 महीने जहाँ रहते थे, और 6 महीने उत्तरकाशी में थे। हाँ वो बस माने जैसे पट खुले गंगा मंदिर के, तो जहाँ आ जाते थे, और बंद होने से पहले नीचे चले जाते थे। हाँ उत्तरकाशी, तो ये इनका रूटीन था। तो इन्हीं की सतर साया में हम रहते हैं, ऐसे ही रखा हुआ, हमने कुछ चेंज नहीं किया, थोड़ा कपड़ा लगा दिया, अपने रहने लोग
तो सेम ऐसी बस यही, ये भी मैं नहीं किया, मेरे से पहले जो माँ वो थे उन्होंने किया इस टाइम। हाँ, मेरे से पहले जो थे उन्होंने किया। अब मंदिर बंद होने के बाद आप ही यहीं रहते हैं, आप भी नीचे जाते हैं? मैं जाता हूँ नीचे, उत्तरकाशी जाते हैं। मैं माने शीतकाल में हम नहीं रहते इधर, शीतकाल में कोई और महात्मा रहता है वो दूसरी कुटीर में, अच्छा, तो फिर हम नीचे चले जाते हैं, उत्तरकाशी, हरिद्वार, फिर आपके उधर दक्षिण अपने लिए क्या करना है आप बताइए। वे बताएंगे आपके गुरु जी। आप भी बता सकते हैं इनके साथ, ये बताएं इनके। हाँ, नहीं इसमें तो गुरु जो बोले ना उसी मार्ग में चलना चाहिए, है ना। वही आपको एक गुरु का मतलब माने अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाने वाला। गु और रू के दो शब्द है ना, गु और रू। हम अंधकार में हैं, तो प्रकाश की तरफ लेके जाता है वो हमारा गुरु है। तो वो आपको फिर साधना बताएगा कि थोड़ा सा ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे करो। मार्गदर्शन मान जिसको बोलते हैं, गुरु हमारा क्या है, मार्गदर्शक है। तो वो आपको मार्ग देता है कि चलिए। उस रास्ते में आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप शेयर करिए गुरु से भी, ऐसा हम साधना में बैठते हैं तो हमके मार्ग में ऐसा कुछ आता है, तो फिर आगे मार्ग प्रस्तुत करता है आपका, फिर बताता है नहीं आप ठीक रास्ते पे हो, जहाँ रॉन्ग वे है ना। तो इसलिए तो है, चलो तो सही। हाँ, है ना, चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम खड़े खड़े पूछते हैं, है ना। हम प्रश्न तो करते हैं, खड़े खड़े पूछते हैं। हाँ, और वो पूछते हैं चलने के लिए। हाँ, चलो तो सही पहले। हाँ, है ना। तो जैसे अभी आप ऊपर से आए, रह रहे नीचे कमरे में, तो मैं बोलूंगा आप ऊपर जाना है, तो वहां से जंप करेंगे क्या? खड़े हो नहीं करेंगे ना, चल के जाएंगे। हाँ, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, साधना में ऐसे स्टेप है ना। तो एक से बढ़कर एक, फिर आपको एक स्टेप पार किया, फिर दूसरा स्टेप में जब पहुंचे, तो पता है आपके गुरु को पता है कि क्योंकि वो उसी रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते गुजरा है, उसको पता है कि ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, उनको पता, फिर आप बताएंगे अभी दूसरे स्टेप पे आप ऐसा करो, तीसरे पे स्टेप करो, चौथे पे ऐसा करो, ऐसा करके। पर हमारा क्या लक्ष्य है कि चलना चाहिए हमको अध्यात्म पथ में चलना चाहिए, तभी कुछ अनुभूति हमको हो पाएगी, अनुभव कुछ हो पाएगी। अदरवाइज तो क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है, सुना इधर से निकाल दिया, और जैसी पचड़े में फंसे ग्रस्त के, फिर वही हो जाता है काम। हाँ, इसलिए नियम बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, नियम बहुत जरूरी है अध्यात्म में। नियम नहीं छोड़ना, जो आपने लिया है नियम, कोई भी करते हो वो नियम नहीं छोड़ना। इसलिए हमारे संध्या के लिए 3 वर्णों के लिए संध्या अनिवार्य किया गया है। 3 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के लिए संध्या अनिवार्य किया गया है। माने 3 काल की नहीं करता, कौन सा 2 काल की संध्या करे वो, है ना। तो संध्या में क्या है कि आपको एक रास्ता मिलता रहता है, ये नियम वो तोड़ना नहीं है। संध्या शास्त्र में आया है कि ब्राह्मण अगर कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कर्मकांड करवाता है, यज्ञ पूजन करवाता है, 3 दिन अगर संध्या छोड़ दिया उसने 3 दिन के लिए, तो उसको उपनयन द्वारा होगा, उसका यज्ञोपवीत, यज्ञ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा होगा उसका, तब जाके वो कर्म का अधिकारी बनेगा। कर्म दोबारा करवाना पड़ेगा उसको। हाँ, अगर 3 दिन उसने गायत्री छोड़ दी, इसलिए गायत्री नहीं छोड़ते, 3 वर्णों के लिए जरूरी है गायत्री करना बहुत जरूरी है। गायत्री करना जरूरी है, और गायत्री के लिए नियम है। तो कोई भी है, अगर हम कोई भी कार्य संसार में भी कोई कार्य करते हैं, नियमबद्ध करते हैं, तो हम सफल होते हैं। अगर नियमबद्ध नहीं करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलती हमको। सपोज करो भोजन ही ले लो, आप सुबह करते हैं, नाश्ता करते हैं, सही टाइम पे करते हैं तो ठीक है, उसका ऊपर नीचे होता है तो गड़बड़ होगा। दोपहर का भोजन भी ऊपर नीचे होता है, टाइम पे नहीं करते तो आपके स्वास्थ्य में बिगाड़ आ जाएगा। कोई भी कार्य है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, नियम से ही चलता है। धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, बिना नियम से कुछ नहीं। सूर्य नियम से निकलता है, अगर वो बोले नहीं अरे मैं तो लाखों वर्षों से निकल रहा हूँ, एक दिन छुट्टी ले लो, नहीं होता। चंद्रमा नियम से, है ना, जितने ग्रह नक्षत्र सब नियम से चलते हैं। कितने हैं देखो, अगर नियम से नहीं चलेंगे तो टकरा जाएंगे आपस में। अगर नियम से नहीं चलेंगे तो आपस में टकरा जाएंगे, टकरा के क्या होगा फिर? हमारा भी तो ग्रह ही है, हम भी घूम रहे हैं। तो नियम बहुत जरूरी है जीवन में, तभी अगर सफलता लेनी किसी क्षेत्र में, आप सामाजिक क्षेत्र हो, माने विद्यार्थी का अगर जीवन है उनका, माने विद्या का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, अध्यात्म क्षेत्र हो, नियम बहुत जरूरी है, नियम से चलना चाहिए। और फिर जो आपको मार्ग दिया जाता है उस पर चलना भी है। कोई विघ्न तो आती रहते हैं, क्योंकि मन है और संसार भी है, कोई पारिवारिक को विघ्न आ गया, कोई कुछ आ गया। पर हमारे जो महापुरुषों से हमने जो सुना, महात्माओं से, नियम नहीं छोड़ना बोले, काल का लोप हो जाए बोले,
जैसे सुपौल करो आप गायत्री करते हैं, आप स्टेशन पे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब रात को पहुंचे, संध्या का समय रात का 5 से लेकर 7 बजे के बीच में, आप पहुंचे 10 बजे, ठीक है ना। काल का तो अलोप हो ही गया, काल का लोप हो गया है, पर बोले नियम जो किया है ना उसका लोप नहीं होना चाहिए। जाके जा तो मानसी करो, वहीं बैठे बैठे मानसी कर लो, नहीं तो जाके 10 बजे करो, नियम नहीं छूटेगा आपका। काल छूट गया कोई बात नहीं, नियम नहीं छूटेगा। हम क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, अब कल कर लेंगे, 10-11 बजे पहुंचे, आप थके हैं, क्या करेंगे। हाँ, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी अध्यात्म पथ में। अगर गुरु ने बोला है कि भाई आपको मैंने गुरु मंत्र दिया है तो इसकी माला करना है, आपने एक जगह जो भी करते हैं, बीच में कोई आप कहीं गए सफर में, या वो उसने सोचा जहाँ कोई है नहीं कुछ नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाता है काम। मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया, ब्राह्मण के लिए 3 दिन गायत्री छोड़ दे तो दोबारा उपनयन करना पड़ता है। तो जैसे ही हमने नियमों छोड़ा 2-3 दिन, तो रास्ते से हट गए। वहां आने के लिए फिर आपको और प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ता है। ऐसा है, अगर बाई चांस हम रह भी गए, जैसे उसका भी प्रायश्चित होता है, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं ना, ये संध्या छूट गई तो नियम से नहीं होगी, तो उसका प्रायश्चित गुरु में एक और गायत्री का वो करते हैं। तो सारा नियम बनाया हुआ शास्त्र में, ये पूरा शास्त्र में है, पूरा का पूरा। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र विधि जैसे आप पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, तो पढ़े ही हैं। तो जो आपको पढ़ाया, किन्होंने प्रोफेसरों ने पढ़ाया, आपके जो टीचर्स थे उन्होंने पढ़ाया ना, वही पढ़ के तो आप उत्तीर्ण हुए ना, अगली नेक्स्ट कक्षा में गए, अगली क्लास में गए। अपने मन से तो लिख के नहीं आए ना पेपर में। ऐसे ही हमारे जो वो है शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र है वो हमारे अध्यापक है। हमको जो बोलते हैं उसके अनुसार हाँ हमको चलना पड़ेगा, तभी हम ये जो हमारा जो कक्षा है, जो हमारी जिसमें प्रवेश की परीक्षा है जो हमारे जीवन की, तभी हम उत्तीर्ण हो पाएंगे। अदरवाइज शास्त्र का कहा हुआ और गुरु का कहा हुआ, ये दोनों को मानना पड़ेगा। ये तो ये सिंपल सी उदाहरण दिया मैंने आपको, सिंपल सी उदाहरण है, एग्जाम्पल फॉर बिल्कुल समझने वाला है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे, जो आपके प्रोफेसरों ने अध्यापकों ने आपको पढ़ाया, उसी को पढ़ के आप नेक्स्ट क्लास में गए। ये बात सही है। ऐसे ही हमारे जो शास्त्र हमको बोलते हैं, हमारे जो संत पुरुष महापुरुष गुरु लोग हमको बोलते हैं, उसको फॉलो करके हम आगे जा सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। तो ये है, तभी जीवन सुखमय होगा। हमारा तो अध्यात्म क्या है कि आप सुख में कैसे रख सकते हैं, आनंद में कैसे रख सकते हैं। सनातन का यही है, उपनिषदों ने यही बोला, वेद में यही बोला है, सभी शास्त्र यही बोलते हैं। पर हम क्या है कि शंकराचार्य जी ने बोला है ना, मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही आपका नाम मनुष्य पड़ा है, मन के कारण है ना। मन में इतनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये है। अब उसमें घुस गए तो बंधन में पड़ गए, उससे निकल गए तो मोक्ष हो गए। बंधन का और मोक्ष का कारक हमारा मन ही है, मन ही है। इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी दुख देता है, कभी सुख देता है, कभी विक्षेप होता है। मन को ही तो होता है, मन का ही होता है। हम अपने आप को मन समझ लिया। हमारे शास्त्र, हमारे गुरु बोलते हैं नहीं आप मन नहीं हो। वो आपको समझाते हैं युक्ति से, ऐसे नहीं युक्ति देते हैं। युक्ति क्या देते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, सब जानते हैं। जागृत है, अभी सब देख रहे हैं जागृत में। सुषुप्त है, स्वप्न में चले गए, फिर आप निद्रा अवस्था में, हाँ। फिर सुसुप्ति में गए, ठीक है। सुसुप्ति में गए तो भगवान वहां हाँ नहीं, चौथी अवस्था है वो कैसे पता लगेगी आपको, वो तो पता नहीं है। बोल रहे हो बस आप, 3 अवस्था का अनुभव है आपको, 3 अवस्था का आपको अनुभव है। अभी जागृत में आप मेरे को सुन रहे हो, स्वप्न जब आप बैठे पे चले जाओगे, स्वप्न चलेगा तो उसमें मैं कभी कभी आ जाऊंगा, तो आज कुटी भी आ जाएगी, तो स्वप्न आ गया वो, ठीक है ना। फिर ना सुषुप्ति क्या है, ना वहाँ जागृत है, ना वहाँ स्वप्न है। वही बोलता है, शास्त्र बोलता है कि परमात्मा आपको स्पर्श करता है सुषुप्ति में, पर आप उसमें अज्ञान हो, उसमें उसको हम अज्ञान बोलते हैं। कारण शरीर है ना, वो अज्ञान है, तो आपको पता नहीं कि भगवान ने स्पर्श किया, तभी आप दूसरे दिन 24 घंटे के लिए कार्य करने के लिए वो होते हो, एनर्जी आपको ऊर्जा आती है सुषुप्ति में। पर आप सवेरे जब बोलते उठ के, उसमें आपको पता नहीं सुषुप्ति में चलेगी, आपका शरीर कहाँ पे है, आपका मन कहाँ पे है, दोनों लोप हो गए। शरीर का ही पता नहीं है, मन का ही पता नहीं है, मन भी लोप हो गया वहां पे।
तो फिर जब दूसरे दिन उठ के बोलते हो कि अरे मेरे को इतनी बढ़िया नींद आई कि मैं कहाँ सोया मुझे पता नहीं, ये प्रश्न कई बार बोलते होंगे आप कि मैं इतने सुख से सोया कि मैं कहाँ सोया मुझे पता ही नहीं। अच्छा, ये सब वाक्य कौन बोलता है? तो सवेरे उठ के आप तो जागृत थे, निद्रा में चले गए, निद्रा में मन भी लोप हो गया, सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति में अज्ञान है, वहां किसी को पता नहीं है। तो फिर ये जो उठ के दूसरे दिन बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? मन बोल रही है। नहीं, वो आप बोल रहे हैं। अच्छा, ना वहाँ मन था, ना वहाँ शरीर था, कुछ नहीं था वहाँ, ना बुद्धि थी। हाँ, बुद्धि भी नहीं है हाँ, उसके अंदर। वहाँ बुद्धि भी नहीं है, शरीर सो गया है, मन भी सो गया, सुषुप्ति में चला गया, सुषुप्ति मन भी सो जाता है। तो सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ ज्ञान में आपको, तो कैसे हुआ वो? तो वो वही है जो आप है असली, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा उसको अवस्था, हम- उसके आगे तुरिया, हाँ, वही तुरिया है, वही तुरिया है। वही तुरिया है, उसी को तुरिया बोलते हैं। और वो ना मरता है ना जीवता, भगवान गीता में बोल रहे हैं, ना उसकी मृत्यु होती है ना जन्म होता है। मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। शरीर की, शरीर। मन की भी नहीं होती है। मन की भी भगवान ने गीता में बोला है कि मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जब जाते हैं 5-8 चीजों को लेके जाते हैं, पंचभूतों को, हाँ। मन बुद्धि अहंकार को। मन, गीता में भगवान ने बोला बुद्धि और पंचभूत, पंचभूत। तो वो आपका अगले शरीर में वो आप अपना लेके जाते हैं। उसमें अगर बढ़िया आपकी ठीक रही तो दूसरे, आपने सोचा कभी कभी पढ़ा होगा कि वो बच्चा जन्म हुआ, पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की बात कर रहा हूँ, वो सूक्ष्म में उसने वो पकड़ लिया उसको। वो जो मन था ना, मन कभी नहीं मरता है, मन आपका दूसरे शरीर में जाएगा। ये जब शरीर शांत होगा ना, दूसरे जब शरीर आप धारण करोगे, उसमें सब ये 5-8 चीजें चली जाएंगी। आपका मन, बुद्धि, अहंकार और पंचभूत। पंचभूत होने होना दूसरे शरीर में, और शरीर इसलिए तो जन्म लिया ना पंचभूत का। 3 चीजें और जाएंगी उसकी, आपका मन, अहंकार, बुद्धि, अहंकार, जो उसको चित्त भी बोलते हैं। हाँ, तो वो जो आपके अभी संस्कार हैं वो उसमें भी चले जाएंगे। वो कभी सूक्ष्म हो गए तो फिर आपको इस जन्म का पता लग जाएगा, उस जन्म में जाके। कई सुने होंगे आपने भी, अरे वो पूरे पिछले जन्म की बातें बता नहीं तो भगवान उसमें पर्दा डाल देते हैं, उसमें पर्दा डाल देते हैं, वो आपको पिछले जन्म का अनुभव नहीं रहता। फिर एक क्रम चलता रहता है। ये पृथ्वी गोल है, हमारा जीवन भी गोल है। तुरियन का आगे एक का जन्म कुछ हुआ, नहीं। मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। तुरियन- इस क्रम को तोड़ना है। ये तुरियन का आगे कुछ नहीं है। बोलते हैं तुरिया तीता तीत करके बोलते हैं, ऐसा करके है कुछ नहीं। शास्त्र जो बोलते हैं चारों अवस्था बोलता है। बाकी मैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए मैं कुछ ही बोलता रहूंगा आपको। ये तुरिया है, ये तुरिया अतीता अतीत है, ये तुरिया अतीता अतीता है, ऐसा करके एक कुछ बोलता लगा। पर जो शास्त्र बोलता है वो चारों चीजें बोलता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तुरिया माने आप, हाँ। जो आप है। आप ये तो नहीं बोलते कि मैं मन खराब हूं, मैं मन खराब, ऐसा सब वाक्य बोलते हैं। आप बोलते हैं मेरा मन आज खराब है। कोई बोलता मैं मन आज खराब है? कोई नहीं बोलता। मेरा मन आज ठीक नहीं है। जब मेरा मन बहुत प्रसन्न है तो मेरा जब हो गया ना, ये बोतल है, ये मेरी है, ये क्या थर्मस मेरी है, तो हमारा रिश्ता बन गया। रिश्ता नहीं बना, अलग अलग है। वो तो दोनों अलग ये ही अलग है, हाँ। मैं अलग हूँ। हाँ, ये कमरा तो अलग है। हाँ, जब आप बोलते हो मेरा मन आज खराब है, मतलब कि मन का मन का तो मन अलग हो गया, मन अलग हो मन अलग, मैं अलग हो गया ना। तो आप मन नहीं हुए, हम मन नहीं, मन जड़ हो गया। मन जड़ हो गया। ये बात जड़ तो नहीं है फिर आप तो चेतन है, चेतन। मन भी नहीं अच्छा, है। पर हम जीते मन से ही है, जीते हम मन से। जैसे बोलते मेरी पत्नी है, पत्नी अलग है, मैं अलग हूँ, वो हो गए ना। ऐसे ही मन को कभी मैं नहीं बोलते हैं। मैं मन बहुत अच्छा है, मैं मन बहुत खराब है, मैं मन बहुत प्रसन्न है, ऐसा नहीं बोलते। मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा मन बहुत आनंद में है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा करो। मन से जुड़ा हुआ जब आप मन के बारे में बोलोगे तो फिर आप मेरा बोलोगे, मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन प्रसन्न है। जब मेरा और तेरा आ गया ना तो वहाँ अलग अलग हो गए, शरीर और मन का सेपरेशन। हाँ, पहले तो शरीर है नहीं, ये तो सबको पता है। ये मोटी सी बात है कि स्थूल शरीर हम नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी थे, शरीर होते तो रहते, अभी भी होते नहीं, चले गए, हम भी जाएंगे, सबको पता है। ये भला करता है।
फिर चला जाएगा। फिर उसके आगे का स्टेप है कि क्या है, क्या हम मन है, क्योंकि मन से जीते हैं। मनोमय सृष्टि है जो सारी, ये सृष्टि मनोमय है, तो मन भी है। क्योंकि शास्त्र बोलता है युक्ति से ना, शास्त्र बोलता है कि नहीं आप मन भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब सुसुप्ति में जाते हो, आपका अनुभव है आपसे, तो वहाँ मन नहीं होता। अगर मन होता तो फिर आपको पूरी की पूरी याद है, वहाँ आपको भगवान चार्ज करता है दूसरे दिन के लिए, एनर्जी देता आपको स्पर्श करके। पर आपको अज्ञान में है, इसलिए आपको पता ही नहीं। इसलिए हमारे बोलते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, भीतरी है वो आपको। जो पर्दा हमने डाल रखे हैं ना, अपने अज्ञान के पर्दे, मन का पर्दा हटाओ, ओपन हो जाए। इसी के लिए साधना है। ये जो साइकिल चल रही है, इसको कैसे खत्म करना है? वो तो आप स्वामी जी बताइए, गुरु है आप बता दीजिए, स्वामी जी से भी मैं बात करूंगा। हाँ, तो वो साधना, इसीलिए हम गुरु दीक्षा लेते हैं कि हम कोई साधना, वो पद्धति हमको मार्ग दे और उस मार्ग में हम चले। तो शास्त्र, फिर शास्त्र है, शास्त्र का चिंतन करो, शास्त्र बताता है ऐसा है कुछ नहीं। शास्त्र बोलता है इतना ही खेल है, और शास्त्र यही बोलता है कि कई जन्म लग जाएंगे। देखिए कितना हमारे शास्त्र की कितनी अनुकंपा है हमारे ऊपर, अनुग्रह है। वो बोलता है इतने से मुक्त हो जाओगे, सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इतने से मुक्त, इतना समय कितना लगा, इतने से मुक्त हो जाओगे। और बोलता है कई जन्म लग जाएंगे। अगर मन के पीछे लगे रहे तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। अगर मन की प्रक्रिया हमने समझ ली तो हम मुक्त हैं। बंधन में कौन है? मन ही तो है ना। इसलिए तो उन्होंने बोला आचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने, मना एवं कारणम बंध मोक्ष। मन ही कारण है हमारे बंधन का, हमारे मोक्ष। इसलिए छोड़ो काम धंधा करना, भगवान का भजन करो, है ना, अपने लिए कुछ समा दो, नहीं तो फिर अगला जन्म आने वाला फिर उसी में उसी धर्म में जन्म देगा भगवान। ऐसे अरे ये सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, और गुरु जो आपको मंत्र देता है उसका समय के अनुसार जप करो, वो भी होता है। शास्त्र अध्ययन करो, शास्त्र गुरु जो कराता है उसका उसके रास्ते में चलो। गुरु का मतलब यही, जो अंधकार से प्रकाश तरफ लेके जाए। और हम गुरु को बोलते हैं मार्गदर्शक, सिर्फ मार्गदर्शक। हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाला है। हमको पता नहीं गंगोत्री कैसे आना है, गुरु के साथ आए, 14 साल से इनके साथ है ना। तो ये बताता है ऐसे ही जाना है, तो तपोवन जाना है। तो अगर कोई आपके साथ जानकार होगा तभी तो जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। गोमुख में भटक जाओगे, वहाँ पे अच्छे से भटक जाते हैं। इसलिए यही गुरु का वो है, हमको मार्ग बताता है। इसलिए शास्त्र और गुरु दोनों जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु भी बहुत जरूरी है और शास्त्र भी बहुत जरूरी है। गुरुजी से तो बात करूंगा, बट आपसे भी लेना, मतलब करता ध्यान रहा में हूं। आपको कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा, निराकार का ध्यान कर दे सकते हैं। बीच का माध्यम कुछ लेना हाँ, पड़ेगा। वो एक साकार आपको एक पकड़ना पड़ेगा। ध्यान में कोई ना कोई हमको सहारा चाहिए। निराकार का, हाँ, हमको सहारा, निराकार में हम नहीं जा सकते, जबकि आप निराकार ही हैं। हाँ, पर हम अंत में निराकार ही है, हाँ, but पर हम, हमारा मन क्या है कि साकार को लेके जल्दी पहुंच सकता है। निराकार में क्या है कि बड़ा मुश्किल है और भटक जाता है मन। तो इसलिए जो भी आपका इष्ट है, जो आपको गुरु आपका इष्ट बताता है, तो उस इष्ट का ध्यान करें, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे जो आगे के स्टेप है तो फिर वो बताएंगे। और कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, तो वो इष्ट का ध्यान जब बैठो आके बंद करके, तो ये हमारा इष्ट हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे हम स्थूल में ना भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ऐसे मन ही मन उसका वो करना, आह्वान करके, हाँ, आह्वान करके जो भी पूजा करनी है, तो धीरे धीरे फिर करके हम उसी में लाइव हो। तो ये वो लंबा है, ऑपरेशन तो आपने छोटा बोला, पर इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। मैं समझ गया आपकी बात, हाँ। मैं पूरा समझ गया। हाँ, तो इसलिए शॉर्ट समय में नहीं बता सकते। नहीं, ये बात समझ तो ये बताएंगे आपको लोकराज जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो
वैष्णव्यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व सदा शिवो नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ದೊಡೆಯನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ದೊಡೆಯನ ಜಗವ ಪೊರೆವ ಮಹಾತ್ಮ ಶಂಕರನ ಮುದದಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಈಶನ ಜಗವ ಪೊರೆವ ಮಹಾತ್ಮ ಶಂಕರನ ಮುದದಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಈಶನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ದೊಡೆಯನ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪೂಜಿಸೋ ಗೌರೀಶನ ಭವಭಯ ನಿವಾರಿಸೋ ಸದಾ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪೂಜಿಸೋ ಗೌರೀಶನ ಭವಭಯ ನಿವಾರಿಸೋ ಸದಾ ಶಿವನ ಮಹದೇವ ನಿನ್ನಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ದರಸನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡುತ್ತಾ ಮಹದೇವ ನಿನ್ನಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ದರಸನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಾಡುತ್ತಾ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರೀವರ ಬೆಳಗಿಸುವೆ ನಂದಾದೀಪ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಪಿಲದೊಡೆಯ ಮಹಲಿಂಗೇಶಗೆ ಬೆಳಗಿಸುವೆ ನಂದಾದೀಪ ಪರಶಿವನಿಗೆ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಪಿಲದೊಡೆಯ ಮಹಲಿಂಗೇಶಗೆ ಚಂದ್ರನನು ಮುಡಿದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರನೇ ಗಂಗೆಯನು ಹೊತ್ತ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರನೇ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮೋ ನಮೋ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಪಿಲದೊಡೆಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ದೊಡೆಯನ ಜಗವ ಪುರೆವ ಮಹಾತ್ಮ ಶಂಕರನ ಮುದದಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಈಶನ ಜಗವ ಪುರೆವ ಮಹಾತ್ಮ ಶಂಕರನ ಮುದದಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಈಶನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಜಪಿಲ ದೊಡೆಯನ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರೀವರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಗಂಗಾಧರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರೀವರ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ನಮೋ ನರಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮೋ ಗೋಪಾಲ ನಮೋ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ನಮೋ ಗೋಪಾಲ ನಮೋ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ನಮೋ ಆ ಗಗನಂ ಈ ಭುವನಂ ಸರ್ವಂ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವಂ ಹರಿಯೇ ಆನಂದದಾಯಕಂ ಹರಿಗಾನಮೇ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ವರದಾಯಕ ನಮೋ ನಮೋ ಸುರನಾಯಕ ನಮೋ ನಮೋ ಪಶುಪಾಲಕ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಿ ರಕ್ಷಕ ನಮೋ ನಮೋ ಪಶುಪಾಲಕ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಿ ರಕ್ಷಕ ನಮೋ ನಮೋ ಈ ತನುವು ಈ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವಂ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವಂ ಹರಿಯೇ ಆನಂದದಾಯಕಂ ಹರಿಗಾನಮೇ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ
कृष्ण हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद कृष्ण हरे సర్వోత్తమ నమో నమో సహస్రనామ నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో శ్రీనివాస నమో నమో వెంకటేశ నమో నమో శ్రీనివాస నమో నమో ఈ గానం ఈ ప్రాణం సర్వం హరియే సర్వం హరియే ఆనందదాయకం హరిగానమే गिरिधर गोपाल हरे गोविंद कृष्ण हरे 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 नारायण कृष्ण हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद नारायण गोविंद कृष्ण हरे नारायण गोविंद कृष्ण हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद कृष्ण हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद कृष्ण हरे गिरिधर गोपाल हरे गोविंद कृष्ण हरे श्याम सत्संग एक ठिकाना है कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी निभाना है
ऋषि रहते थे दंडक वन में, करते थे भयभीत असुर मुनियों को वन वन में। मुनियों संग अगस्त ऋषि रहते थे दंडक वन में, करते थे भयभीत असुर मुनियों को वन वन में। बन के आए राम रूप में मुनियों के बहारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी। मुनि अष्टवक्र से शापित अघासुर रहता था वृंदावन में, हरि हलधर संग सारे ग्वालों को निगल गया था वन में। मुनि अष्टवक्र से शापित अघासुर रहता था वृंदावन में, हरि हलधर संग सारे ग्वालों को निगल गया था वन में। संहार किया था अघासुर का बन के रक्षाकारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी। नरसी भगत की कथा सो बड़ी सुहानी है, भक्ति रस में डूबी हुई यश भरी कहानी है। उद्धार करो अवधेश दास को बन के प्रभु हितकारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी। हे नारायण सुन लो अर्ज हमारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी, हम भक्ति चाहते तुम्हारी। ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆಂದು ನೆನೆಯಿರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆಂದು ನೆನೆಯಿರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಕೇಶವನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನರಕ ಭಯವಿಲ್ಲವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಮಾಧವನ ನೆನೆದರೆ ಮನೋಭಿಷ್ಟ ಕೊಡುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗೋವಿಂದನ ದಯದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತ ನಾಶವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು. ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು.
ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದವಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮ ಉಂಟೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮಧುಸೂದನನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅತಿಶಯವೂ ಇಹುದು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಹರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಾಮನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಶ್ರೀಧರನ ನೆನೆದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಒಲಿವಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಋಷಿಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಪನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿಂದ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ನೆನೆದರೆ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಫಲವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಅನಿರುದ್ಧನ ಸೇವಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗಿಯವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ